નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ફર્સ્ટ અને મુદ્દાની વાત સાથે હું છું કશિશ। મુદ્દાની વાતમાં આજે વાત કરવી છે કેન્દ્રમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સરકારના જે 9 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર ઉજવણી થઈ રહી છે। ગુજરાતમાં આજે કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુર આવ્યા હતા। વિશેષ બેઠક મળી હતી કારણ કે ઉજવણી કરવાની છે અને સાથોસાથ પત્રકાર પરિષદ પણ યોજવામાં આવી હતી, જેમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુર દ્વારા વિશેષ પ્રેઝન્ટેશન આપવામાં આવ્યું હતું। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 9 વર્ષ અને સુશાસનના 9 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે, તેના પર ભારતમાં કેવા કેવા વિકાસલક્ષી પ્રજાલક્ષી કાર્યો થયા છે તેના પર તેમણે પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું હતું। મીડિયાને અને જનતાને અવગત કર્યા હતા કેવી રીતના પરિવર્તન આ 9 વર્ષમાં ભારતમાં આવ્યું છે। ત્યારે મુખ્યમંત્રી દ્વારા શું વાત કરવામાં આવી, સૌથી પહેલા એ સાંભળી લઈએ। આ 9 વર્ષ એટલે ભારતની આંતરરાષ્ટ્રીય છબીના, ભારતીય સંસ્કૃતિની પુનઃસ્થાપનાના, ગરીબ કલ્યાણના, યુવાનોની આકાંક્ષા પૂર્તિના, મહિલા સશક્તિકરણના, ખેડૂત કલ્યાણના, ડબલ એન્જિન સરકારના। આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં ભારત આજે G20 સમિટનું યજમાન પદ શોભાવી રહ્યું છે અને આજે કાશ્મીરમાં G20ની બેઠક સફળતાપૂર્વક યોજી। વડાપ્રધાનશ્રીના આહવાન પર સમગ્ર વિશ્વએ ભારતના યોગને સ્વીકાર્યો અને વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી કરી। સાથે સાથે શ્રી અન્નને પણ ગ્લોબલ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડ્યું। તાજેતરમાં જ વડાપ્રધાનશ્રીના વિદેશ પ્રવાસમાં જોયું કે કોઈ રાષ્ટ્રના વડા આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીને બોસ કહે છે તો કોઈ રાષ્ટ્રના વડા નમન કરીને સન્માન કરે છે। મિત્રો, આ સન્માન એ વડાપ્રધાનશ્રીની સાથે સાથે 140 કરોડ ભારતીયોનું સન્માન છે। આ નવા ભારતનું સન્માન છે। આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ આપેલા વન સન વન અર્થ વન ગ્રીડના સૂત્રને સમગ્ર વિશ્વએ સ્વીકાર્યું છે અને ગ્રીન એનર્જી માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સોલાર એલાયન્સનું નેતૃત્વ ભારત કરી રહ્યું છે। આપણે સૌ ગઈકાલે ઐતિહાસિક ક્ષણના સાક્ષી બન્યા છીએ। દેશની લોકશાહીના મંદિર એવા સંસદ ભવનના નવા ભવનને રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરવામાં આવ્યું છે। નવા ભારતને દિશા આપનાર, નવા ભારતની નવી નીતિ રીતિ બનાવનાર આ ભવનમાં સેંગોલની સ્થાપના કરીને ભારતીય સંસ્કૃતિને આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પુનઃસ્થાપિત કરી છે। રામ મંદિરનું નિર્માણ, સોમનાથ મંદિરનો વિકાસ, કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોર, મહાકાલ લોક, કેદારનાથ ધામમાં આદિ શંકરાચાર્યની પ્રતિમાની સ્થાપના જેવા અનેક કાર્યો આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રી દ્વારા થયા છે। આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વડાપ્રધાન બન્યા બાદ પોતાના પહેલા પ્રવચનમાં કીધું હતું કે અમારી સરકાર ગરીબ, દલિત, પીડિત, શોષિત અને વંચિતોને સમર્પિત સરકાર રહેશે। વડાપ્રધાનશ્રીએ કલ્યાણકારી યોજનાઓ દ્વારા ગરીબોના જીવનને બદલવાનો, ગરીબોને ગરિમામય જીવન આપવાનો સફળ પ્રયાસ કર્યો છે। કોરોના મહામારીમાં સમગ્ર વિશ્વને ચિંતા હતી કે ભારત કેવી રીતે સામનો કરશે, ત્યારે પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના લાગુ કરીને દેશના કરોડો ગરીબોને મફત અનાજ પૂરું પાડ્યું છે। દેશના ગરીબ જરૂરિયાતમંદ લોકોને પોતાના સપનાનું ઘર મળી રહે તે માટે પણ પ્રધાનમંત્રી શ્રી આવાસ યોજના શરૂ કરી અને 3.5 કરોડથી વધુ આવાસોનું નિર્માણ આ કર્યું છે। આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના દિશા દર્શન અનુસાર આ જે મકાનો આપ્યા છે એ મકાનોમાં
વીજળી, પાણી અને શૌચાલયની સુવિધા સાથે બનાવવામાં આવ્યા છે. ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર દ્વારા ગરીબોને તેના હક સીધો તેના ખાતામાં મળી રહે છે અને ગત 9 વર્ષમાં અંદાજે 29 લાખ કરોડ રૂપિયા ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર દ્વારા લોકોના ખાતામાં પહોંચ્યા છે. આજે આપણે ગર્વ સાથે કહી શકીએ છીએ કે ભારત દેશ વિશ્વની ત્રીજી મોટી સ્ટાર્ટઅપ ઇકોનોમી સિસ્ટમ બન્યું છે. ગુજરાતમાં પણ 850થી વધુ સ્ટાર્ટઅપ કાર્યરત છે અને વડાપ્રધાનશ્રીએ દેશના યુવાનોને, યુવા ધનને અવસરની સાથે યોગ્ય દિશા દર્શન પણ માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં મહિલા સશક્તિકરણ નવા અધ્યાયની શરૂઆત થઈ અને આજે દેશની દીકરી ગણતંત્ર દિવસની પરેડનું નેતૃત્વ કરી રહી છે. સેનામાં મહિલાઓ માટે પરમેનન્ટ કમિશનની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. ટ્રિપલ તલાક વિરુદ્ધ કાયદાનું મહિલાઓને સશક્ત બનાવવા માટે અમલ કરવામાં આવ્યો છે. દેશમાં ગરીબ મહિલાઓને ચૂલાના ધુમાડામાંથી મુક્તિ આપવા માટે ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ 39 લાખ મહિલાઓને રાંધણ ગેસ પૂરો પાડવામાં આવ્યો છે. કેન્દ્રની મોદી સરકાર ખેડૂતલક્ષી સરકાર છે. આરોગ્યની સુખાકારી તે તેમનું ઉત્તમ પ્રાધાન્ય, સર્વોત્તમ પ્રાધાન્ય છે. અને સાથોસાથ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા જ્યારે દેશની આઝાદીના 75 વર્ષ પૂર્ણ થયા અમૃતકાળમાં દેશવાસીઓ પાસે 5 સંકલ્પ લેવામાં આવ્યા હતા. શું હતા એ 5 સંકલ્પ? ખેડૂતલક્ષી કેવા કાર્યો કર્યા છે? આરોગ્યની સુખાકારી માટે વડાપ્રધાને કેવા કાર્યો કર્યા છે? જાણીએ. કિસાન કલ્યાણ યોજના અંતર્ગત દેશના કિસાનોને સાચા અર્થમાં સશક્ત કરવાનું ઐતિહાસિક કામ આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ 9 વર્ષમાં કર્યું છે. સૌથી પહેલા તેમણે યુરિયાનું નીમ કોટિંગ કરીને યુરિયાના કાળા બજાર અટકાવ્યા અને દેશમાં બંધ પડેલા યુરિયા કારખાનાઓ શરૂ કરીને કિસાનોને ખાતરની અછત પડવા દીધી નથી. ખેડૂતોને કિસાન સન્માન નિધિ દ્વારા વર્ષે 6,000 રૂપિયા સીધા તેમના ખાતામાં મળી રહે તેનું આયોજન કર્યું અને ઈ-નામ પોર્ટલ દ્વારા દેશના ખેડૂતોને ક્યાંય પણ માલ વેચવો હોય તો એ વેચી શકે એ ઈ પોર્ટલની શરૂઆત કરી. આરોગ્યની સુખાકારીની વાત કરીએ તો વડાપ્રધાનશ્રીએ દેશના સામાન્ય નાગરિકને ઉત્તમ સારવાર અને સસ્તી દવા મળે તે માટે જન ઔષધિ કેન્દ્રોની સ્થાપના કરી. તેમણે વિશ્વની સૌથી મોટી આરોગ્ય માટેની યોજના એટલે કે પ્રધાનમંત્રી જન ઔષધિ યોજના PM જય શરૂ કરી અને જેનો લાભ દેશના 60 કરોડ નાગરિકોને મળી રહ્યો છે. આજે દેશમાં મેડિકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને વેગ મળી રહ્યો છે. વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં 200 મેડિકલ કોલેજો શરૂ કરવામાં આવી છે. આજે ભારત દેશનું 75 વર્ષ પૂરા કરી જ્યારે અમૃતકાળમાં પ્રવેશે છે ત્યારે વડાપ્રધાનશ્રીએ દેશવાસીઓને જે 5 સંકલ્પો આપ્યા છે એમાંનો પહેલો સંકલ્પ એટલે વિકસિત ભારતના નિર્માણ છે. બીજો સંકલ્પ ગુલામીની માનસિકતાને છોડવી. ત્રીજો સંકલ્પ આપણા સાંસ્કૃતિક વારસા પર ગૌરવ કરવું. ચોથો સંકલ્પ એકતાનો, એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતની પ્રતિજ્ઞાનો છે અને 5મો સંકલ્પ દેશવાસીઓની જવાબદારી. સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસ ધારવા આ 5 સંકલ્પો પરિપૂર્ણ થશે. મોદી સરકાર જનતાના હિત માટેની સરકાર, સીએમ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે તો કહ્યું. અને સાથોસાથ પત્રકાર પરિષદમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 9 વર્ષના સુશાસનનું સર્વૈયું બતાવવા માટે વિશેષમાં કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુર ઉપસ્થિત હતા. પ્રેઝન્ટેશન વાઇઝ તેમણે બતાવ્યું કે 9 વર્ષમાં કેવા પરિવર્તન આવ્યા છે, ભૂતકાળમાં ભારત કેવું હતું અને વર્તમાનમાં ભારત કેવું છે, કેવું પરિવર્તન મોદી સરકાર લાવી છે. દેશની સેવા માટેના 9 વર્ષના સુશાસનમાં ગરીબ કલ્યાણકારી યોજનાઓ કેવી રાખી છે, ગરીબો માટેની આ મોદી સરકારે કેવા કામ કર્યા છે ગરીબો માટે. સાંભળીએ. लगभग 10 साल पहले ले चलता हूं. मैं तो उस समय दूसरी बार का सांसद था, युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था.
शायद ही कोई महीना, कोई हफ्ता ऐसा जाता हो जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन ना करना पड़ता। 10 साल पहले देश की स्थिति यह थी कि एक के बाद दूसरा घोटाला नजर आता था। देश के लोग अपने आप को असहाय महसूस करते थे, ठगा हुआ महसूस करते थे। ना देश में नेता दिखता था, ना नीतियां दिखती थी, और नीयत में तो उस समय खोट ही नजर आता था। दुनिया को तो क्या भारत पर विश्वास होता, भारतीयों को ही भारत के नेता पर विश्वास नहीं था। ऐसी परिस्थिति में युवाओं को भी अपना भविष्य अंधकार में दिखता था। लेकिन 2013 में जब मोदी जी के नाम की घोषणा हुई, एक गरीब मां के बेटे थे, लेकिन ईमानदारी के कारण, गुजरात के विकास के कारण, गुजरात के सुशासन के कारण वो देश में बहुत लोकप्रिय हो चुके थे। एक उम्मीद देश के लोगों को नजर आई कि मोदी जी आएंगे तो शायद देश बच जाएगा, मोदी जी आएंगे तो हमारे बच्चों का शायद भविष्य अच्छा हो जाएगा, मोदी जी आएंगे तो हमें तो शायद पिछले 60-65 सालों में कुछ नहीं मिला, हमारे बच्चों को ही कुछ अच्छा मिल जाएगा। एक उम्मीद जगी थी मोदी जी के नाम से। आज 9 वर्षों के बाद मैं कह सकता हूं, जो कभी सोचा ना था वो भी हुआ है। और ये मैं नहीं, आज हर भारतीय कहता था कि कभी सोचा ना था कि पक्का मकान मिलेगा, कभी सोचा ना था शौचालय मिलेगा, कभी सोचा ना था कि रसोई गैस के चूल्हे पर खाना बनाने को मिलेगा, कभी सोचा ना था नल से जल मिलेगा, कभी सोचा ना था बैंक का खाता खुलेगा, कभी सोचा ना था 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा, कभी सोचा ना था कि धारा 370 हटेगी, कभी सोचा ना था हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा करने को मिलेगी, और जो कभी सोचा ना था कि भव्य राम मंदिर बनेगा, वो भी पूरा करके दिया है। ये तब हुआ जब देश ने नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार देकर चुना है। जो सोचा ना था वो भी पूरा हुआ है। अब गरीबों को ना सिक्योरिटी मिलती थी ना डिग्निटी। गरीबों को तो बोझ समझा जाता है अर्थव्यवस्था के ऊपर, क्योंकि नेहरू जी के समय से लेके इंदिरा जी, राजीव गांधी और राहुल गांधी जी के समय तक कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने नारा लगाया, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब मिट गया था लेकिन गरीबी नहीं मिटी थी। लेकिन मोदी जी ने उनको निकालने का काम किया। अर्थव्यवस्था से जोड़ने की बात जब की 15 अगस्त 2014 को, तब बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि गरीब का अर्थव्यवस्था से क्या लेना, कांग्रेस के लोग कहते थे। मोदी जी ने बैंक खाते भी खुलाए, 48 करोड़ बैंक खाते खुले, आज उनमें 2 लाख करोड़ रुपया जमा हुआ है। जो कभी ब्याज की मार से नहीं निकलते थे, आज उनको बैंक का खाता सस्ते में ऋण भी मिलता है। स्वनिधि जैसी योजना में गरीब रेडी फड़ी वाले को 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक बगैर किसी कोलेट्रल के मिलता है और कम ब्याज दर पे मिलता है। डिजिटल पेमेंट से वापस कर दो तो वो भी, उससे भी मुक्ति मिलती है। ये तब हुआ, गरीब को बोझ नहीं, अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाने का काम किया है। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 9 વર્ષના કાર્યકાળ દરમિયાન તેમના દ્વારા પ્રજાલક્ષી જે કામો કરવામાં આવ્યા છે, સાથોસાથ ખેડૂતો માટેની આ સરકાર રહી છે। પ્રજાના હિત માટે કામ કરતી આ મોદી સરકાર, જે કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે કભી સોચા ના થા યે હોગા, પ્રજાએ ક્યારે વિચાર્યું ન હતું કે કોરોના મહામારી આવશે, પરંતુ મોદી સરકારનું મિશન હતું પ્રજાને, ભારતીય પ્રજાને કોરોનાથી રક્ષણ આપવું। ઘરે ઘર પોતાના ઘરનું ઘર થાય તે સ્વપ્ન મોદી સરકારે લોકોનું સાકાર કર્યું છે। ઘર ઘરમાં શૌચાલય હોય, સ્વચ્છતા બની રહે તે માટે મોદી સરકારનું મિશન હતું ને ભારતીય જનતા પોતાના ઘરે શાંતિથી, સુખાકારીથી, ભારતીય હોવાનું ગર્વ કરીને રહી શકે તે એકમાત્ર મિશન મોદી સરકારનું હતું, જે આ 9 વર્ષના સુશાસનમાં તેમણે પૂર્ણ કર્યું છે।
देखिए, पाई पाई बचाई और गरीब की भलाई। पाई पाई बचाने का काम कैसे होता है साहब? 4,70,00,000 से ज्यादा हमने राशन कार्ड जो फर्जी थे, हमने उसकी, जो लोग फर्जी खाते वाले थे उनको बाहर निकाला, वो तो किया है। लेकिन मिशन सबसे बड़ा हमारे सामने क्या था? कोविड वैक्सीन। कोविड महामारी ने दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया। अब जान बचाएं कि अर्थव्यवस्था बचाएं, ये लोग कहते थे, मीडिया के मित्र भी कहते थे। मोदी जी ने गरीबों को भूखमरी से भी बचाया और महामारी से भी बचाया। 2 वैक्सीन देश में बनाई भी, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई भी, 160 देशों को वैक्सीन पहुंचाई भी, आज दुनिया के साथ वैक्सीन मैत्री निभाई भी। और सुंदर पिचई जी ने आकर कहा मुझसे यहां पर कि भाई मोदी जी ने तो कमाल कर दिया, मैं तो सिलिकॉन वैली में बैठ के भी अपने सर्टिफिकेट की कॉपी जेब में लेकर चलता हूं, हार्ड कॉपी। मोदी जी ने तो कोविन ऐप पर डिजिटल कॉपी दे दी, जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। भारत की छवि कहां पहुंच गई? वैक्सीन दी भी, दवाइयां भी दी और डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया। कल रात को बारिश हुई तो आपको लगा कि बहुत अच्छा मौसम हो गया अहमदाबाद में, लेकिन जैसे ऋतुएं बदलती हैं, हिंदुस्तान में मौसम बदलता है तो कईयों की मुसीबत भी बढ़ती थी। भीषण गर्मी में लू से गरीब जलता था, शीतलहर की ठंड से ठिठुरता था, बारिश की बूंदों से उसका चूल्हा से लेकर उसका बिस्तर तक गीला हो जाता था, और सर्दी में ओस की बूंद बूंद से उसको ठंड से कांपना पड़ता था। महिलाओं का सबसे बड़ा सपना एक पक्का मकान का होता था, जो कांग्रेस के समय उसमें भी कमीशन मांगी जाती थी, थोड़ा सा पैसा दिया जाता था, दीवारें खड़ी होती थी, छत पड़ती नहीं थी। मोदी जी ने 3.5 करोड़ पक्के मकान मात्र 9 साल में बनाकर दे दिए। 3.5 करोड़ पक्के मकान गरीबों को बनाकर दे दिए। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, ये कहूंगा महिलाओं का सपना भी पूरा किया, और 75% महिलाओं के नाम पे रजिस्ट्री हुई और बाकी ज्वाइंट खाते में हुई। तो महिला का सपना पूरा करने का काम मोदी सरकार ने किया है। मुसीबतों से मुक्ति और उनको आनंद भी दिया है। शौचालय, कभी आप ट्रेन से भी जाते थे, साथ वाली पटरी पे लोग शौच खुले में करने बैठते थे। सड़कों पे जाओ तो ये हालत होती, खेतों में जाओ तो ये हालत होती थी। खुले में शौच करने वाले 70 करोड़ लोग भारत में थे। क्या शौचालय बनाना भी इतनी बड़ी बात थी? मोदी जी ने आके शौचालय 12 करोड़ परिवारों को बनाकर दिए, और बहनों को इज्जत घर बहनों ने नाम लिखा, क्योंकि उनको सुबह सुबह 3-3 घंटे पहले उठकर जाना पड़ता था, सूर्योदय से पहले। छेड़खानी की घटनाओं से लेकर बलात्कार की घटनाएं भी उस समय होती थी। बेटियों को स्कूल छोड़ना पड़ता था क्योंकि शौचालय की सुविधा नहीं थी। इज्जत भी बढ़ाई, बचाई, और स्वाभिमान भी बढ़ा आगे। ग्रामीण इलाकों में जहां 40% भी नहीं था, वहां 100% कर दिया है। ये बहुत बड़ी सुविधा। આજે વડાપ્રધાનના સુશાસન દરમિયાન જે નલ સે જલ યોજના ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ હતી, ઉત્તર ભારતમાં એવા વિસ્તારોમાં એ યોજના પહોંચી છે જે કદાચ ત્યાંના લોકોને દૂર દૂર સુધી પાણી માટે જવું પડતું હતું, વલખા મારવા પડતા હતા। તો સાથોસાથ એવા લોકોને ઘર મળ્યા છે, એવી ગૃહિણીઓ કે જેમને ગેસ વગર રસોઈ કરવામાં એટલી મુશ્કેલી પડતી હતી, એ ગૃહિણીઓ એક ઘરમાં ગેસ કનેક્શન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સુશાસનમાં મળ્યું છે। જોઈએ આના પર શું કહ્યું કેન્દ્રીય મંત્રી अनुराग ठाकुरे। बीमारियां की अगर मैं बात करूं तो उसके बाद मैं गांव से आता हूं। बहनों और भाइयों, हम लोग भी कुएं से नहाने जाना, पानी सिर पे उठा के लाना, मेरी वाली पीढ़ी तक भी यही था। आज तो लेह लद्दाख के 15,000 फीट की हाइट पर देखेंगे, हिमाचल के 16-17,000 फीट की हाइट पर देखेंगे तो वहां पर भी नल से जल पहुंचाने का काम देश के 12 करोड़ घरों में मात्र 4 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। कांग्रेस 70 साल में 2.83 करोड़ घरों तक ही पहुंचा पाई थी, हमने 4 सालों में 12 करोड़ घरों तक पहुंचा दिया है। आप सोचिए उन परिवारों का,
जिसको खुले में शौच करने जाना तो कई घंटे, जिसको लकड़ी लानी चूल्हा जलाने के लिए तो उसके लिए समय, पानी लाना तो उसके लिए समय, घर कच्चा हो तो पानी जो गिर रहा है उससे बचाने के लिए समय बर्बाद करना। आधी जिंदगी तो इसी में निकल जाती थी। मुसीबतों का पहाड़ खत्म नहीं होता था, लेकिन मोदी जी ने धुएं से मुक्ति दिलाई। उज्ज्वला योजना 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को दी, बहनों को दी, और कुल मिलाकर 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे 2014 तक। अब 31 करोड़ 36 लाख हो गए हैं आगे। और हमने गैस में भी 200 रुपए की सब्सिडी अगले 1 साल तक और कर दी है महिलाओं के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, जहां 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलता है। आशीर्वाद तो देश में मिलता था, आयुष्मान भव, लेकिन आयुष की चिंता कोई नहीं करता था। गरीब की जो बचत थी, जो पूंजी थी गाड़ी कमाई की, वो इलाज में ही चले जाती थी, कई बार तो कर्जे में डूब जाता था। आज 60 करोड़ लोग मुफ्त में इलाज कराते हैं, और इसमें से अब तक 4.5 करोड़ लोग मुफ्त में इलाज करवा चुके हैं। हजारों करोड़ रुपया गरीबों का बचाया तो मोदी सरकार ने बचाया है। ભારતમાં એક વર્ગ એવો પણ હતો કે જે ચિંતામાં રહેતો કે પરિવારમાંથી કોઈ મેમ્બર બીમાર પડશે તો ઇલાજ કેવી રીતના થશે, કેટલો મોંઘો પડતો હતો એમને ઇલાજ। પરંતુ આયુષ્માન યોજનાના આશીર્વાદ જે મોદી સરકારે જનતાને આપ્યા છે, એનાથી ઇલાજ તો મફતમાં થઈ રહ્યો છે। પરંતુ ન માત્ર આયુષ્માન યોજના, જન ઔષધિ કેન્દ્ર કે જ્યાં સેવા પણ એટલી સસ્તી છે, એટલી વ્યાજબી પડે છે, ત્યાં જે કેન્દ્રીય મંત્રી આરોગ્ય अनुराग ठाकुर द्वारा જે પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન પ્રેઝન્ટેશન દરમિયાન એક વાક્ય કહેવામાં આવ્યું છે કે મેડિસિન તો મોંઘી હતી, પરંતુ મોડીસિનના કારણે, આપ શબ્દને ધ્યાનથી સાંભળજો, મોડીસિનના કારણે અત્યારે લોકોને એમનો ઇલાજ, એ દવાઓ સસ્તી લાગી રહી છે। તો ન માત્ર જન ઔષધિ કેન્દ્રમાં સેવા આપવામાં આવે છે, પરંતુ સાથોસાથ અનેક લોકોને રોજગાર પણ પૂરો પાડવામાં આવે છે। મોદી સરકારે કૃષિને જે પૈસાનો બોજ વધારાનો નથી પડવા દીધો। 9 વર્ષ દરમિયાન કિસાનોને જેટલો બોજ અન્ય દેશોમાં પડ્યો છે એટલો ભારતમાં નથી પડ્યો। ખેડૂતલક્ષી કેવી કેવી યોજનાઓ બહાર પાડી છે, અને સાથોસાથ મોદી સરકાર તૃષ્ટિકરણ નથી કરતી। મોદી સરકાર સશક્તિકરણ માટે કામ કરે છે, યુવા સશક્તિકરણ, સ્ત્રી સશક્તિકરણ। યુવાનો આજે બહુ જલ્દી પોતાના પગ પર ઊભા રહી જાય છે, એ માટે મોદી સરકારે પ્રથમ પ્રાધાન્ય આપ્યું છે। जन औषधि केंद्र सेवा भी और रोजगार भी, हजारों लोगों को रोजगार मिला, और 23,000 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य के बजट में परिवारों के पैसे बचे हुए। क्यों? क्योंकि जो मेडिसिन 100 रुपए की आती है, वो मोडिसिन 15 रुपए में आती है। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, आप हंस भी रहे हैं कि मेडिसिन 100 रुपए में और मोडिसिन 15 रुपए में। जी हाँ, जो दवाइयों की दुकान पे 100 रुपए में मिलता था, वो जन औषधि केंद्र में 15 रुपए में मिलता है, क्योंकि 85% से 90% तक सस्ता है। जो आप 1 लाख रुपए का स्टंट डलवाते थे, आप में से शायद ना पड़ा हो किसी को, लेकिन 1 लाख रुपया लगता था, आज वो 8,000 रुपए में मिलता है। मित्रों, यही नहीं, ये पाई पाई बचाई भी और गरीब की भलाई भी। खाद की कीमतें, कांग्रेस का समय था 2012-13 की भी मैं बात बड़ी पुरानी क्या करनी, 2012-13 में भी इतनी लाठियां चली कि किसान को खाद कम लाठी ज्यादा पड़ी, और खाद किसान के खेत की बजाय लोगों की फैक्ट्री में ब्लैक मार्केटिंग में बिकती थी, और फसल का सीजन निकलता था तो खाद मिलनी शुरू होती थी। मोदी सरकार के 9 साल में ना खाद की कीमतें बढ़ने दी। आप देखिए, पिछले 2 सालों में दुनिया में 3 गुना ज्यादा खाद और यूरिया के दाम बढ़ गए, लेकिन मोदी सरकार ने 1 रुपए का बोझ भी किसी किसान के ऊपर नहीं पड़ने दिया। 2,30,000 करोड़ की सब्सिडी मोदी सरकार ने दी, और खाद की कमी भी नहीं आने दी, यूरिया की कमी भी नहीं आने दी। नेक्स्ट, अब किसानों के लिए 6,000 रुपया सम्मान निधि हम खाते में डालते हैं। 11 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला। 2,40,000 करोड़ रुपया अब तक हम किसानों के खाते में डाल चुके हैं। भाई और बहनों, ये सोच कहां से शुरू हुई किसान कल्याण की, जब मंत्रालय का नाम ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय रख दिया।
हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करके लागत प्लस 50% मुनाफा देना शुरू किया। एमएसपी के दाम बढ़ाए, खरीद दुगनी से ज्यादा करने का काम किया। सिक्योरिटी नेट किसानों के लिए बनाया। अगर फसल बर्बाद हो गई तो फसल बीमा योजना से मुआवजा मिलेगा। 50% फसल नहीं, अब 30% फसल बर्बाद होने पर भी आपको मुआवजा मिलता है और 1,35,000 करोड़ रुपया किसानों को अब तक मुआवजा मिल चुका है। और किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना, सिंचाई योजना पहुंचाने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च किया। अब पर ड्रॉप मोर क्रॉप का सपना पूरा हुआ। फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपए का लाए और उससे वैल्यू एडिशन करने का काम किया। 23,023 योजनाओं को मंजूरी दे दी। 26,000 करोड़ रुपए, 23,600 करोड़ रुपए के लगभग मंजूर कर दिया ताकि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के पैसे से और सुविधाएं मिल सके। यही नहीं मित्रों, हम किसानों की आय को दुगने करने की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ हम रिकॉर्ड पैदावार भी कर रहे हैं। मेरे पास आंकड़े में आपको बताऊं, हमने रिकॉर्ड पैदावार खेतीबाड़ी के क्षेत्र में की और ये अपने आप में दिखाता है कि 3305 लाख टन अनाज हमने पैदा किया, जिसमें से राइस यानी कि गेहूं, राइस यानी कि धान, ये हमने 1355 लाख टन इसको पैदा किया। और गेहूं की बात करूं तो 1127 लाख टन इसकी रिकॉर्ड पैदावार हुई। मक्के की बात करूं तो 359.13 लाख टन इसकी रिकॉर्ड पैदावार हुई। तिलहन ऑयल सीड्स की बात करूं तो 409.96 लाख टन ये पैदावार हुई। सोयाबीन लगभग 150 लाख टन। तो वहीं पर मस्टर्ड 125 लाख टन। तो गन्ना 4,942.28 लाख टन। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। ये तब हुआ जब सुविधाएं भी दी और खरीद भी की और हमारे किसानों ने भी रिकॉर्ड पैदावार की है। मित्रों, आगे अगर मैं बताऊं तो किसानों के लिए तो हमने जो किया वो अपने आप में दिखाता है कि मोदी सरकार के सोच में ही किसानों की भलाई थी और उनको हम आगे बढ़ाना चाहते थे। कीमतों पर भी नियंत्रण डाला और नई टेक्नोलॉजी, चाहे ड्रोन के माध्यम से हो, बाकी वो भी उपलब्ध करवाया। एफपीओस भी हम 10,000 से ज्यादा बनाने का काम कर रहे हैं। और संस्थागत ऋण जो इंस्टीट्यूशनल लोन होता है वो 2013-14 में 7,30,000 करोड़ था, इस साल 20 लाख करोड़ कर दिया है। यानी कि किसानों के हाथ में ज्यादा पैसा कम ब्याज दर पे दे रहे हैं। पीएम कुसुम जैसी योजना, सोलर पंप चलाने का काम भी हमने किया है। अंत्योदय, गरीब से गरीब व्यक्ति जो पंक्ति के अंत में खड़ा है उसका उदय करने की बात, उसकी भलाई का काम। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम भेदभाव नहीं करते, हम तुष्टीकरण नहीं सशक्तिकरण में विश्वास करते हैं और सबका साथ सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तभी तो 27 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को भी उच्च शिक्षा में आरक्षण दिया। किसी का हक नहीं मारा, बल्कि 10% आरक्षण वहां दिया, सुविधा दी। आगे राज्य पिछड़ा आयोग, बहुत सारे लोग पिछड़ों की राजनीति करते हैं, लेकिन हमने तो राज्य पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा भी दिया और पिछड़ों के सशक्तिकरण में ये मील का पत्थर साबित हुआ है। हम सेवा में विश्वास करते हैं, कुछ लोग राजनीति में। आगे देखिए, 2014 से पहले आप डिसेबल्ड, विकलांग ये शब्द सुनते होंगे, अब आपको दिव्यांग और स्पेशली एबल्ड सुनने को मिलता है। ये शब्दों का बदलाव नहीं, ये सोच का बदलाव है, देखने का नजरिया बदला है, सुविधाओं में सुधार किया है और कैटेगरी 7 से बढ़ाकर 21 तक कर दी, जिनको इसमें गिना गया। उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया। आप देखिए, मोदी जी जब गुजरात में थे तो पैरालंपिक्स वालों को यहां पर बल देते थे, देश में गए तो उन्होंने ही 19 मेडल जीतने का काम किया और डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल जीतने का काम किया, जो आज तक के सबसे ज्यादा है। सोशल जस्टिस मंत्रालय का बजट भी हमने दुगना कर दिया और
हमने दिव्यांगों का भला और उनको सम्मान भी दिया और एक समान अधिकार देने का। તો 2014થી જ્યારથી કેન્દ્રમાં મોદી સરકાર છે ત્યારથી દેશની વિકાસની ગતિમાં વધારો થયો છે। દેશની પ્રગતિ કેવી થઈ છે તે આપણે સૌ કોઈ અત્યારે જોઈ જ રહ્યા છે। અનેક યુનિવર્સિટીઓ બની છે, ખાસ કરીને ઉચ્ચ શિક્ષણ ક્ષેત્રે જ્યારે યુવાનોને એવી ઈચ્છા થતી કે હવે અહીંયા વધુ સારું ભણતર નહીં મળે, હવે વિદેશ જવું પડશે, ત્યારે ભારતમાં અલગ અલગ સ્થળે એવી યુનિવર્સિટીઓ, એવા ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ સ્થાપવામાં આવ્યા છે કે જે વિદેશના ઇન્સ્ટિટ્યુશનની સરખામણીએ આવે છે। એવું ઉચ્ચ શિક્ષણ યુવાનોને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે। શું કહ્યું આના પર કેન્દ્રીય મંત્રીએ? સાંભળીએ। गति भी प्रगति भी। अब जब गति की बात आती है तो मेरे जो अपने क्रिकेट का समय याद आ जाता है कि किस स्पीड से बॉल की, क्या रन रेट रहा, कल कितना रहा भाई। कल तो मौसम ने गड़बड़ की, लेकिन आज आपको फिर देखने को मिलेगा। ऐसे कई बार गड़बड़ कांग्रेस ने भी की थी, जब गति भी रुक गई थी, प्रगति भी रुक गई थी। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद अगर आप अगली स्लाइड पे देखेंगे तो जो 74 एयरपोर्ट बने वो 2014 तक थे, यानी कि साल का एक नया एयरपोर्ट मिलता था। मोदी सरकार ने 9 साल में 74 बनाए, जो 8.2 है, यानी कि 8 गुना ज्यादा एयरपोर्ट बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। गति भी प्रगति भी। नेक्स्ट ये देखिए, नेशनल हाईवेज कांग्रेस के समय 1362 किलोमीटर प्रतिदिन बनते थे और मोदी सरकार में 5985 प्रति वर्ष बनते हैं। कांग्रेस के समय 1362 किलोमीटर प्रति वर्ष बनते थे और मोदी सरकार में 5985 किलोमीटर प्रति वर्ष बनते हैं, जो लगभग 4.5 गुना ज्यादा है। गति भी और प्रगति भी। और अगर मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करूं तो 2014 तक मात्र 3,80,000 किलोमीटर बने थे, लेकिन मोदी जी ने 9 साल में 7,35,000 किलोमीटर बना दिए। तो ये गति भी और प्रगति भी कई गुना ज्यादा है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे वाटरवे, कांग्रेस तो खाता नहीं खोल पाई थी, डक, लेकिन मोदी सरकार में सेंचुरी लगाने का काम हो रहा है। 111 वाटरवेज को चिन्हित करके नाम देके उन परियोजनाएं शुरू करने का काम, वो डक पर, और हम सेंचुरी लगाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगले में देखेंगे तो वंदे भारत ट्रेन, कांग्रेस सोच नहीं पाई थी, डक पर मोदी सरकार ने 4 साल में 20 वंदे भारत चलाई, जो सबसे तेज गति से चलने वाली, सबसे आरामदायक ट्रेन और बहुत समय बचाने वाली ट्रेन भी है, सुविधाजनक ट्रेन भी है। ये भी कई गुना ज्यादा है। अब मैं अगर मेट्रो की बात करूं तो 2014 तक 5 शहरों में थी, यानी कि 0.07 ऐड हुए पिछले 70 सालों में, जबकि मोदी सरकार में ये 1.6 शहर प्रति वर्ष हमने शामिल किए। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम आज भारत में है। वी आर द 3rd लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड। 900 किलोमीटर बन गई और 900 किलोमीटर और बन रही है। भाई और बहनों, गति भी और प्रगति भी। 15 नए एम्स बना दिए मात्र 9 सालों में। 70 साल में 7 बने थे, हमने 15 बना दिए। मेडिकल कॉलेज 700 नए बन गए 9 सालों में, 70 साल में 641 थे। और सीटें 70,000 के लगभग नहीं ऐड कर दी, जबकि 70 सालों में केवल 82,000 थी। ये केवल आंकड़े नहीं, ये स्वास्थ्य की सुविधाओं से जुड़ी हुई बात है। ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं, ये एक्सेस टू हाइजीन एंड हेल्थ केयर की बात है। गरीब का बच्चा भी आज सोच सकता है कि मैं डॉक्टर बनना है, क्योंकि कैपिटेशन फी नहीं देनी पड़ेगी। सरकारी कॉलेज कितने खुल गए, सीटें कितनी बन गई। एम्स जैसे अस्पताल मेरे छोटे से हिमाचल प्रदेश में भी 1700 करोड़ रुपए का बन गया, मोदी जी के आशीर्वाद से बन गया। नेक्स्ट में देखेंगे फॉस्टरिंग इनोवेशन, आईआईटी हो, आईआईएम हो, यूनिवर्सिटीज हो। मित्रों, 70 साल से ज्यादा समय में 700 यूनिवर्सिटीज और हमने 9 साल में 390 यूनिवर्सिटीज।
देखिए, मात्र 9 सालों में 7 IIM IIT बना दिए और 10,000 के लगभग अटल टिंकरिंग लैब हमने बना दी, जिससे हमें स्टार्टअप से लेके बाकी साइंस की ओर भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। ये सोच ही नहीं, ये गति भी और प्रगति ये मोदी सरकार के कारण हो पाई है। विश्व में पहला, आज तक तो हमने सुना नहीं था भारत ने पहला कुछ ऐसा काम किया। अब कई जगह हमें नए नए शब्द सुनने को मिलते हैं। विश्व में पहली बार ही हुआ तो हमारे यहाँ पे आज विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम भी भारत का है। 40% दुनिया की डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होती है। पिछले साल 7400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुई, 13,42,000 करोड़ से ज्यादा का उसमें व्यापार लेन देन आमने सामने हुआ है। इसी तरह से नैनो यूरिया प्लांट, जो लिक्विड प्लांट है, 50 किलो का यूरिया का बैग नहीं अब उठाना पड़ेगा, इतनी सी बोतल नैनो यूरिया की आपको पूरे खेत में छिड़काव के काम आ जाएगी। ड्रोन जैसी सुविधाओं के कारण आज व्यक्ति नहीं, ड्रोन से स्प्रिंकलर स्प्रे भी हो जाता है, स्प्रे करने का काम भी किया जाता है। नेक्स्ट, ये परियोजना है, ये कांग्रेस ने अटकाया, लटकाया, भटकाया, सब किया, मोदी ने पूरा करवाया। मोदी जी ने पूरा कैसे करवाया? सरयू नहर परियोजना लगभग 45 साल पुरानी थी, पूरी नहीं हो पाई, मोदी जी ने पूरी करवाई। ये कोसी रेल महासेतु 5 दशक लग गए, मोदी सरकार ने पूरा कराया। कोलम बाईपास, बोगीबील ब्रिज, आप देखिए साहब, ये अधूरे लटके पिलर नजर आते थे, उम्मीद ही नहीं नजर आती थी, मोदी आए तो उम्मीद भी जगी है और ये पूरा भी हुआ। ये तो मैं केवल 4 स्लाइड दिखा रहा हूं, ऐसी 400 स्लाइड दिखा सकता हूं जो मोदी जी ने काम पूरे करके किए हैं। कांग्रेस ने अटकाया, लटकाया, मोदी जी ने पूरा कराया। એક સમય હતો કે જ્યારે ભારતમાં લોકો રહેતા અથવા તો કોઈ ભારતની વાત કરતા ત્યારે ઇન્ડિયા નથિંગ ન્યુ એવું કહેતા, પરંતુ આ નવું ભારત અલગ છે। આ નવા ભારતમાં બધું જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે। નવા ભારત માટે કહેવામાં આવે કે સૌથી સારી આ વસ્તુ, સૌથી લાંબો બ્રિજ, સૌથી એટ્રેક્ટિવ ટનલ, બધું આ નવા ભારતમાં બની રહ્યું છે। નવા ભારતનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સર્વશ્રેષ્ઠ માનવામાં આવી રહ્યું છે। તો ન માત્ર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, પરંતુ નવા ભારતની એક પરિભાષા છે અત્યાધુનિક ભારત। ડિજિટલ ક્રાંતિ આવી રહી છે, ડિજિટાઇઝેશન, ડિજિટલ ઇન્ડિયા પર જે ફોકસ ભારતીય અને મોદી સરકારે કર્યું છે અદ્વિતીય છે। આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન જ્યારે કોરોના આવ્યો ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વાત કરી હતી કે આત્મનિર્ભર ભારત બનવાનું છે। જ્યારે ભારતની અર્થવ્યવસ્થા થંભી ગઈ હતી કારણ કે લોકડાઉન હતું, ત્યારે આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનની શરૂઆત થઈ હતી અને અત્યારે ક્યાં પહોંચી ગયું છે આત્મનિર્ભર અભિયાન, જોઈએ। કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન, પ્રેઝન્ટેશન દરમિયાન તેમણે કહ્યું હતું કે દેશનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સર્વશ્રેષ્ઠ થઈ રહ્યું છે। ભારતમાં સૌથી સરસ એ ભારત માટે બની ગયો છે શબ્દ। एयरपोर्ट हमारे जो बने सो बने, वो तो भव्य बने ही, अब हमारे रेलवे स्टेशन भी भव्य बने हैं और अर्थव्यवस्था के केंद्र भी बने, इकोनॉमिक सेंटर बने हैं। दुकानों से लेकर व्यापार करने का अवसर भी मिला और सुविधाओं को भी उसमें ज्यादा से ज्यादा देने का काम किया। रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी वहीं पर मिले। ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये सुविधाओं के साथ साथ रोजगार के केंद्र भी बने। नेक्स्ट, ये विकास का अजूबा मैं इसलिए कह रहा हूं मित्रों, ये केवल रेलवे का पुल नहीं है, ये कई 100 फीट नीचे से इस पुल को बनाया गया चिनाब नदी पर कश्मीर में, और ये आईफल टावर से 100 फुट ऊंचा है। कितना? जो कभी सोचा ना था वो भी करके दिखाया है। पहले ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर मार्बल दुनिया भर में देखने को मिलते थे। पहले दूसरे देशों के हम वीडियोस देखते थे टीवी चैनल्स पर, इंजीनियरिंग मार्बल कैसा है, आज भारत ऐसी चीजें बना कर दे रहा है। अगला दिखाइए, ये इंजीनियरिंग मार्बल, आप में से किसी को जाने का अवसर मिला? सबके हाथ खड़े हो गए। ये उस महान शख्सियत का है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिन्होंने 553 रियासतों को विलय कराकर सशक्त भारत की नींव रखी थी।
लोह पुरुष सरदार पटेल ये भी मोदी जी ही कर पाए, जो कभी सोचा ना था वो भी करके दिखाया। आज ये केवल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं, एक अर्थव्यवस्था का केंद्र भी है, रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी मिले हैं। नेक्स्ट, अटल टनल 10,000 फीट की हाइट पर मेरे हिमाचल प्रदेश में अटल जी ने बनानी शुरू की थी। यूपीए के 10 साल निकल गए, कुछ नहीं हुआ, लटकाया। कांग्रेस ने पूरा कराया मोदी जी ने। और यही नहीं मित्रों, जो शब्द हम कभी पहले नहीं सुनते थे वो आज सुनने को मिलते हैं। सबसे लंबी सुरंग, सबसे ऊंचा पुल, सबसे तेज रफ्तार से हमने अपनी संसद बनाई, सबसे बड़ी हमने ये काम कराया। यानी कि सबसे लंबी, सबसे तेज, सबसे ऊंची, सबसे बड़ी, ये कभी हमारी भाषाओं में कभी आता ही नहीं था, कभी सुनने को नहीं आता था। आज यही आता है क्योंकि प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि के कारण, उनकी प्लानिंग, उनकी एग्जीक्यूशन के कारण उसका नतीजा है कि आज समय से पहले हम इसको पूरा कर रहे हैं। गति भी और प्रगति भी। आगे गति शक्ति परियोजना में कहां पे एम्स है, कहां पे पीजीआई है, कहां पे यूनिवर्सिटी है, कहां पे फॉरेस्ट है, कहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहां पे ट्रेन जा रही है, ये 1600 लेयर आ जाती है। और फिर प्लानिंग करने में पता चलता है कि हमें कहां कहां से किस रेल नेटवर्क को निकालना है, सड़क को निकालना है, पाइपलाइन को निकालना है, और फिर उसमें गति मिलती है। नहीं तो पहले पे अनप्लान तरीके से काम होता था। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान पूरे देश भर में किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मोदी जी ने कहा डिजिटल इंडिया बनाएंगे, तो कांग्रेस ने बहुत मजाक उड़ाया था। लेकिन आज आप देखिए, ई हेल्थ केयर की बात करें, ई पेमेंट्स की बात करें, ई एजुकेशन की बात करें, ई सुविधा की बात करें, ये हमारे सामने पिछले 5 वर्षों में हुआ है जी। जो कभी सोचते नहीं थे, जो कहते पेंशन भी जाना पड़ता था लेने के लिए, जो देने आता था कई बार वो भी कट मनी मांगता था। आज मोदी जी एक बटन दबाते हैं, सीधा खाते में पैसा आता है। कोविड के समय 20 करोड़ 50 लाख महिलाओं के खाते में बटन दबाते ही 31,000 करोड़ रुपया चला गया। कैसे? टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी। और जो जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार, मोबाइल, इसके कारण खाते खुले भी और खाने वालों को बाहर किया भी। खाने वालों को खत्म कर दिया, खाते खोल दिए, आधार दे दिया, हाथ में मोबाइल फोन दे दिया, दुनिया का सबसे सस्ता डाटा दे दिया, और 133 करोड़ आधार, 48 करोड़ जनधन खाते। कांग्रेस कहती थी क्यों गरीब का खाता खुलवाते हो, क्या करेगा खाते का? मित्रों, 48 करोड़ खातों में आज 2 लाख करोड़ रुपया जमा है। वो अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने हैं। 32 करोड़ रुपए कार्ड बने हैं। यूपीआई, भीम, डिजिटल पेमेंट सिस्टम आज दुनिया में, सारी दुनिया मान रही भारत के साथ। 26 देशों ने संधि अब तक कर ली है। भारत के रुपए का क्या मान सम्मान बढ़ा है, हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी को लोगों ने कैसे माना है। और टेक्नोलॉजी का लाभ देखिए, जो डुप्लीकेशन होती थी, जो झूठे फर्जी कार्ड बनते थे, 4 करोड़ 71 लाख फर्जी राशन कार्ड को खत्म किया। 4 करोड़ 14 लाख फर्जी एलपीजी सिलेंडर्स को, कनेक्शन को खत्म किया। और देश के 2 करोड़ 70 लाख से ज्यादा पैसे बचाने का काम मोदी सरकार ने किया। ये पारदर्शिता भी लाए, जवाबदेही भी, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाए। अगला 4G 5G टेक्नोलॉजी भारत ने अपनी बना ली है। दुनिया के केवल 4 देश कर पाए हैं 5G टेक्नोलॉजी, भारत उनमें से एक है। जो सोचा ना था वो भी करके दिखाया है। अब 6G की ओर आगे कदम भी बढ़ाए हैं। सबसे सस्ता इंटरनेट। आज गरीब जो कभी सोचता नहीं था मोबाइल फोन होगा, आज वो डेटा कंज्यूम कर रहा है देश में। जो सोचा ना था वो भी करके दिखाया। डिजिटल लेन देन, व्यापारी सोचते कहां थे जी? 13,40,000 करोड़ का लेन देन पिछले 1 साल में हुआ, 7800 करोड़ ट्रांजैक्शंस के कारण। ये सिक्योर, रॉबस्ट, सोफिस्टिकेटेड डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बनाने का काम किसी और ने नहीं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अगर आप देखेंगे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये जो मोबाइल फोन आपके हाथ में और आपके हाथ में और आपके हाथ में दिख रहा है, ये 5 साल पहले विदेशों से आते थे। भारत 95% से ज्यादा इंपोर्ट करता था, आज 95% इंपोर्ट नहीं। जो सेकंड लार्जेस्ट हमें इंपोर्टर थे, आज सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गए।
और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, पिछले साल हमारा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट निर्यात 1,85,000 करोड़ रुपया हुआ, जो उससे पिछले साल से 58% ज्यादा है। सोच बदली, देश बदला, आत्मनिर्भरता की ओर भारत को बढ़ाने का काम किया। और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम ये नींव है उस सोच की, आत्मनिर्भर भारत बनाने की, मेक इन इंडिया बनाने की। और मैं कह सकता हूं, जो कभी सोचा ना था वो भी हमने करके दिखाया है। देश को अपना 5G नेटवर्क, अपने मोबाइल फोन, अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस से लेकर नई नई दिशाओं में नए नए काम करने का। તો એક સમય હતો કે જ્યારે ભારત સોને કી ચિડિયા કહેવાતું હતું, પરંતુ ત્યારબાદ બ્રિટિશરનું રાજ આવ્યું, અંગ્રેજોના રાજમાં ભારત લૂંટાઈ ગયું। ધીરે ધીરે ભારત આઝાદી બાદ ફરીથી ઊભું થવાનો પ્રયાસ કરતું રહ્યું, પરંતુ વર્ષ 2014 થી ભારતનો સતત લક્ષ્ય એ જ રહ્યો કે ફરી એકવાર બનવું છે સોને કી ચિડિયા। રશિયા યુક્રેન વોર એક ઉદાહરણ છે કે સમય દરમિયાન વિશ્વના અનેક દેશોની હાલત કથળી ગઈ, અર્થવ્યવસ્થા ડગમગી ગઈ, પરંતુ ભારત અત્યારે ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ ઇકોનોમીમાંથી એક છે। સાથોસાથ ન માત્ર સોને કી ચિડિયા બનવા તરફનું આગળનું લક્ષ્ય છે, પરંતુ ભારતમાં જે છેવાડાના વિસ્તારોનો જે વિકાસ થઈ રહ્યો છે, છેવાડાના વિસ્તારોમાં ન માત્ર સૂર્યોદય થઈ રહ્યો છે, પરંતુ વિકાસોદય થઈ રહ્યો છે। એના પર શું કહ્યું કેન્દ્રીય મંત્રી, સાંભળીએ। સોને કી ચિડિયા તરફ ભારત આગળ વધવા જઈ રહ્યું છે। ન માત્ર સોને કી ચિડિયા, પરંતુ સાથોસાથ ભારતમાં વિકાસ પણ એવી રીતના થઈ રહ્યો છે કે પોતાની ધરોહરને સાથે રાખીને, દેશવાસીઓની આસ્થાને માન આપીને ભારતમાં વિકાસ થઈ રહ્યો છે। का डाटा बताता है कि 1,40,00,000 के लगभग नए रोजगार उत्पन्न हुए पिछले एक साल में, और ये पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा है। रोजगार स्वरोजगार के अवसर इनफॉर्मल सेक्टर में तो बहुत ज्यादा है, ये तो मैं फॉर्मल सेक्टर की बात कर रहा हूं, 1,15,000 करोड़। और फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी जो हमारी कही जाती थी, क्या कहते थे, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था 2014 में कहते थे। मात्र 9 वर्षों में लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी है। आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का नाम है। जो कोविड के समय कहते थे भारत करोड़ों लोग मर जाएंगे, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, हमने सबको झूठा दिखाया है, क्योंकि नेता मोदी जी जैसा मिला है जिसने भारत का नेतृत्व ऐसा करके दिखाया है। नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं मित्रों, और वहीं पर हमारे युवाओं ने भारत को इतना आगे बढ़ाया कि हम मात्र 7 सालों में दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन गए। 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम, 1 लाख के लगभग हमारी स्टार्टअप्स बन गई है, और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न, यानी कि एक कंपनी की 8-8 हजार करोड़ रुपए की कीमत ये युवाओं ने किया है, और लाखों लोगों को रोजगार देने का काम भी किया। आगे अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देखें, हमने बहुत तेजी के साथ अपने स्थान में सुधार किया। हमने बहुत सारे पुराने कानूनों को खत्म किया, कंप्लायंस बर्डन को खत्म किया, और यही नहीं, हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी 3रे स्थान पर आ गए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पे 2रे स्थान पे आ गए, स्टील मैन्युफैक्चरिंग पर नंबर 1 आ गए, कई और क्षेत्रों में नंबर 1 बन गए। ये तब हुआ जब नंबर 1 नेता देश ने चुना, उसने देश को भी आगे बढ़ाने का काम किया, गति भी और प्रगति भी मिली, विरासत भी विकास भी। आप कहेंगे विरासत और विकास का क्या लेना? अरे मोदी जी के पंच प्रण में जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई कह रहे थे, विकसित भारत बनाना है, पहला प्रण। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी है, दूसरा प्रण। गौरवशाली इतिहास पे गर्व करना है, अपनी कला संस्कृति साहित्य को संजोना है, बढ़ाना है, आगे करना है। अरे हमने नया संसद भवन तो बनाया, विकसित भारत बनने की ओर कदम भी बढ़ाया। अमृत काल में आजादी का अमृत महोत्सव बनाते देश को नया संसद भवन देने का काम कोई और नहीं कर पाया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। परंपराओं को निभाने का काम किया। सेंगोल, जिसको किसी ने
नेहरू जी की छड़ी कहकर धूल खाने के लिए छोड़ दिया था, उसको पूरी परंपराओं के साथ वापस मान सम्मान के साथ लोकसभा स्पीकर के लोकसभा के सदन में वहां पर सजाया है। मित्रों, ये छोटी बात नहीं है। आप देखिए, सोमनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ धाम, महाकाल लोक धाम, अयोध्या धाम और जो कभी सोचा ना था भव्य राम मंदिर का निर्माण कर ये भी सपना पूरा किया है। ये केवल आस्था के केंद्र नहीं, आधारभूत ढांचा इतना सुदृढ़ किया कि अब ये अर्थव्यवस्था के केंद्र बने, लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले। आप जाइए कभी काशी विश्वनाथ, 5-5 गुना ज्यादा टूरिस्ट हो गया। सोमनाथ के आंकड़े देखिए, कई गुना ज्यादा टूरिस्ट हो गए। अरे केदारनाथ की यात्रा कितनी मुश्किल होती थी, 4 धाम यात्रा के लिए सड़कों से लेके बाकी सुविधाएं शुरू कर दी, रेलवे लाइन बनानी शुरू कर दी। आज वहां पर लोग वापस चले गए जो पलायन करते थे, क्योंकि वहां रोजगार के अवसर दिखने शुरू हो गए। कनेक्टिविटी, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट को मैं कहूं सूर्योदय तो होता था, विकासोदय अब पूर्वोत्तर में हो रहा है। विकास की गंगा अब बह रही है, विकास का उदय अब हुआ है, जब नए पुल, नए एयरपोर्ट, नए हाईवेज वहां पर बनने शुरू हुए। कनेक्टिविटी इज द की। कांग्रेस लुक ईस्ट पॉलिसी के आधार पर चलती थी, मोदी जी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के आधार पर चलते हैं। और पूर्वोत्तर का विकास मोदी जी ने जो किया है वो कांग्रेस 70 साल क्या, अगले 700 साल होता तब भी न कर पाती। अगला ये देखिए, संस्कृति का प्रचार प्रसार, गुजरात से ज्यादा कौन जान पाएगा। माधवपुर गेट किसी ने किया पहले, किसी ने नहीं। कहां मणिपुर, कहां माधवपुर। देखिए, ये मिलन, ये संस्कृति का प्रचार प्रसार, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये मोदी जी ने किया है। सौराष्ट्र तमिल संगमम, काशी तमिल संगमम, ये कोई कल्पना भी नहीं करता था जी, ये मोदी जी के कारण संभव हो पाया। ये केवल नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति नहीं, पूरे भारत की कला, साहित्य, संस्कृति को आज दुनिया भर में नई पहचान दिलाने का काम मोदी सरकार ने किया है। पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदयના ભાવ સાથે છેલ્લા 9 વર્ષથી ભારતમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું સુશાસન રહ્યું છે। ત્યારે નવા ભારત માટે વર્ષ 2024માં જ્યારે લોકસભાની ચૂંટણી આવવાની છે, નવા રેકોર્ડ તોડવા, નવો ઇતિહાસ રચવા, પ્રજાહિતલક્ષી કાર્યો સતત કરવા પ્રયત્નશીલ અને કટિબદ્ધતા સાથે કાર્યશીલ છે મોદી સરકાર। મુદ્દાની વાતમાં હાલ બસ આટલું જ। નમસ્કાર।